ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So amazing to see you all, and today is our 18th day, right? And you know that you kids are so fortunate, not only because of your parents, but it is your dedication also, that from 18 days most of you are coming, right? So it's amazing. When I was a child, that time there was not there was an opportunity to study Gita, but not systematically, not, you know, there were no kids, only old people used to come. So I would think, अरे जो गीता वगैरह है ना, बूढ़े लोगों का काम है, हमारा काम नहीं. So I would never pay my interest there, right? Never pay my attention there. So I never took Gita seriously. But later in the college, I came across the Gita and then I started studying it. But you are so fortunate that since childhood you have developed this interest, right? And continuously you are hearing from 17 days. So it is I would say it is a bigger than test, any test, right? Because अभी ऐसा वातावरण है ना मुंबई में कि आपको लगता है अरे सोते रहो, बस सोते रहो, just sleep man, ये क्या करना है? But still you have taken a bath and you are present here, amazing. And that too before me, right? I was 10 minutes late, but you are sitting here since 8 a.m. amazing. Your enthusiasm is super duper amazing, and Krishna is gonna bless you a lot. Now let's see in this chapter what is the blessing Krishna gives, right? So let's go ahead with this chapter, Moksha Sannyas Yoga, the perfection of renunciation. The chapter name is, right? क्या होता है मोक्ष, क्या होता है संन्यास, इसके बारे में कृष्ण ने बताया है यहाँ पे. हमको क्या लगता है संन्यास का मतलब ऐसा है कि केवल वो जो गेरुए कलर के कपड़े पहन लो और केवल वो सैफ्रॉन क्लोथ होते हैं ना, ऑरेंज कलर के क्लोथ, वो पहन लो मतलब आप सन्यासी हो गए. नहीं, यहाँ पे सन्यास का डीप मीनिंग कृष्ण इस चैप्टर में बता रहे हैं, राइट? और कृष्ण ने कहाँ पे भी कपड़ों का जिक्र नहीं किया. At no point of time Krishna is speaking about the clothes and all these things, right? He's always speaking about your mind's condition. He's always speaking about your consciousness, right? Arjuna had everything. Arjuna had the best of the ratha, the best of the bow and arrow, the best of the charioteer Krishna, the best of the horses, right? But still he could not fight because software problem. So Krishna mainly comes to cure our software problem, right? We have software problem, right? Hardware is perfect, right? But there is a software problem and Krishna comes to cure that, right? He's an expert engineer. He knows where the problem is, right? So in our life, we also go through this kind of software problem. Everything is nice. You know, we have nice parents, we have nice, whatever we ask them, they provide us, but still we are not able to fulfill our goals. हमको लगता है हम नहीं कर पाएंगे. Many times we feel कि लोग क्या कहेंगे ऐसा करूंगा तो. So many things, thoughts come to our mind and we, you know, go away from our real goals, right? जो भी आपका गोल है, आपको जो भी कुछ बनना है, तो वो गोल क्यों टूटता है? क्योंकि मन में विचार आते हैं, अरे नहीं यार छोड़ दो ना, क्या करना है, कितना कठिन है वो. So similarly Arjuna was thinking it's so difficult, but then Krishna made changes in the software, right? And remove that virus. Similarly Krishna will also remove the virus in our mind, and that's how we will become inspired. See, कृष्ण ने गीता में कहाँ पे भी नहीं बताया कि सब छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ. Give up everything and come to me.
Just leave everything and just do bhakti. ये इंजीनियरिंग वगैरह, ये 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड क्या करना है, कहाँ पे लेके जाना है, सब मोह माया है, ऐसे कहा कि कृष्ण ने, सब मोह माया है, सब छोड़ दो। देखिए लोग क्यों गीता नहीं पढ़ते पता है क्या? क्योंकि उनको लगता है कि यदि मैं गीता पढ़ूंगा ना, then my interest in the material life, in my interest in my family life will go down. लोग गीता क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं जो अपने परिवार से प्रेम कर रहा हूँ, मैं जो अभी एक काम धंधा कर रहा हूँ, सब छोड़ दूंगा मैं यदि गीता पढ़ूंगा। अरे अर्जुन ने छोड़ा था क्या? डिड अर्जुन लिव द वॉर? नो। In fact, when he learned Gita from Krishna in 45 minutes, his virus was removed, and he more ferociously fought the war, isn't it? So similarly, हमारी मानसिकता बदलेगी, हमारी कॉन्शियसनेस चेंज होगी यदि हम गीता को सीरियसली देंगे। और जो भी गोल हम परस्यू करना चाहते हैं, विच एवर गोल वी आर परस्यूइंग, वी विल pursue that much earlier with more enthusiasm, right? So that's why we need Gita in our life. So make a use of Gita in everyday's life. Read Gita, study Gita every day, right? Don't think it is a religious book. Of course it's a religious book, right? But more than that, it's a manual. Apply in your life. When you apply and you see changes in your life, Shanti Madigashyati, you will feel happy, you will feel cool, you will feel pacified, Shanti. And you see in this world today, everyone is looking for Shanti. Shanti chahiye, Shanti chahiye, Shanti chahiye. शांति पाने के लिए हर जगह पे भटकते हैं, परंतु गीता में शांति का मार्ग दिया हुआ है, right? Let's go ahead. Now here Krishna is asking, this is theoretical in the sense Krishna is giving a knowledge, so many theories he's speaking, right? So hardly any stories or any, but it's kind of dry. But of course this knowledge is also important, so let's hear that. And in the end of the chapter, Krishna is telling Arjuna, now what should you do, right? And then Sanjaya speaks that, Krishna, when I'm hearing this conversation, that my hairs in the ends are standing on end, I am feeling romanch. And then he says, whoever hears Gita, what happens to them? We will also see that, right? In the 17th chapter, we saw 3 modes of material nature, how the food is in modes of material nature, right? Sattvagun food, Rajagun. And then we saw that how different kinds of austerities, right? Tapasya ka bhi 3 प्रकार की होती है तपस्या, सत्वगुण, रजोगुण and तमोगुण. And then बंद कर दूं क्या चैट क्यों कर रहे हैं आप लोग? If you have question, you write down, right? Then he spoke about tapasya के बाद he spoke about वाणी का तपस्या. What is the वाणी का तपस्या? अच्छा बोलो, right? गीता का पठन करो, right? मन का तपस्या क्या है? मन का तपस्या मतलब इंद्रिय का संयम करो. शरीर का तपस्या क्या है? सारे गुरुजनों को आदर दो, माता पिता को नमस्कार करो, वो शरीर का तपस्या है. इस प्रकार से. And now in this chapter, it is basically continuation of the 17th chapter. Only here the 3 again, 3 modes of material nature are described. Different kinds of workers, different kinds of actions, different kinds of knowledge, right? 3 kinds of knowledge Krishna is telling. Now here Arjuna is asking, Sannyasasya mahabaho tattvamishami veditum tyagasya cha rishikesha prutakke keshini sudanam. So basically Arjuna is asking here about sannyas because it was his idea to take a sannyas, right? Because sannyasi means what? What do you mean by sannyasi? आपने कभी देखा है सन्यासी? सन्यासी मतलब सब कुछ छोड़ के, is not bothered about his own stomach, he's not bothered about the family, he's not bothered about anything, he's just serving God, right? He's not at all bothered about anyone else, right? So he's a sannyasi. So Arjuna thought
कि मैं सन्यासी बन जाऊंगा क्या, कि क्योंकि मुझे वॉर नहीं करना है, सो बेटर आई शुड बिकम आई शुड टेक अ संन्यास. सो ही इज आस्किंग कृष्णा कि चांसेस है क्या, because still he's avoiding to to fight a war. So that's why he's putting his last question कि मैं संन्यास ले लूं क्या. संन्यास ले लूंगा. जनरली क्या होता है ना, सन्यासी को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती. व्हाट डू यू मीन बाय दैट, मतलब उनको काम नहीं करना होता, उनका जॉब नहीं होता. अरे आपने देखा होगा, जनरली ह्यूमन सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज ब्रह्मचर्य आश्रम, मतलब पहले जो 25 इयर्स होते हैं उसमें आपको केवल पढ़ाई करनी है. देन 25 इयर्स इज गृहस्थ आश्रम. इन द गृहस्थ आश्रम यू हैव टू गेट मैरिड and then you have to take care of your family, right? Then comes vanaprastha ashram. In the vanaprastha ashram you have to go to jungles for tapasya, to do tapasya only. After 50 years you have to quit your family. That's it. Nowadays the system is not there. Nobody quits the family, right? They just want to stay in the home, no problem. But at least it is said in the vanaprastha ashram, you should try to give to society more and more. Do service to the society, right? Because we have got so much from society. Now it's time to give back to the society. So 50 years to 75 years, do seva of society. That is vanaprastha ashram. घर में कम रहो, बाहर ज्यादा रहो, सेवा करो सबकी. And then 75 to 100 and then the जो हमारा आखिरी समय है, तब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के केवल भगवान की सेवा करो, संन्यास आश्रम. So Arjuna is asking, tell me Krishna, what is sannyas and what is a त्याग. So indirectly he is asking, chances है क्या मैं संन्यास ले लूं क्या. यदि मैं संन्यास ले लूंगा तो सब इस झमेले से, it's a झमेला, you know, it's a chaotic situation. How can I kill my grandfather? He has understood Gita nicely, but still some large traces of ignorance is there, right? So he's asking कि संन्यास क्या होता है. So he thought संन्यास मतलब सब छोड़ के चला जाना. What Krishna is saying, हमको क्या लगता है संन्यास मतलब क्या, सब कुछ छोड़ के चला जाना, पर नहीं, वैसे नहीं है. त्याग मतलब क्या, what do you mean by renunciation, what do you mean by giving up? जैसे सन्यासी सब कुछ छोड़ देते हैं, तो क्या वो रिनंसिएशन है, क्या वो त्याग है. That's why he is asking, what do you mean by sannyas, what do you mean by त्याग. ऋषिकेश and केशिनिसुदन, दो नाम दिए हैं भगवान को यहाँ पे, ऋषिकेश and केशिनिसुदन. केशिनिसुदन means one who is killer of केशी demon. केशी नाम के राक्षस को जिसने मारा है उनको कहते हैं केशिनिसुदन. और ऋषिकेश का मतलब होता है जिन्होंने अपने इंद्रियों को कंट्रोल किया है. ऋषिकेश, भगवान ने अपने इंद्रिय को कंट्रोल किया है. भगवान हमारी तरह नहीं है कि कुछ भी विचार मन में आए कि वो करने लग जाए, नहीं, इज फुल्ली कंट्रोल्ड. लेट्स गो अहेड. काम्यानां कर्मणान्यासं सन्यासं कवयो विदु सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुर्त्यागं विचक्षणाम्. Now Bhagwan said, Krishna said, giving up all the activities that are based on material desires is sannyas. तो जो चीजें आप खुद के लिए कर रहे हैं, whichever things you are doing for your own pleasures, whichever things you are doing for your own sense gratification, sense enjoyment, खुद को मजा आने के लिए आप जो भी चीजें करते हैं उसको छोड़ देना, उन सारी चीजों को छोड़ देना, उसे कहते हैं संन्यास, राइट. तो यदि कोई सन्यासी है और फिर भी वो खुद के बारे में सोच रहा है तो वो सन्यासी नहीं है कृष्ण के हिसाब से. ठीक है, जैसा पिक्चर टू टेल व्हाट द सन्यासी इज. तो सन्यासी का मतलब होता है जो भी चीजें आप खुद के लिए कर रहे हैं, खुद के मजा आने के लिए कर रहे हैं, खुद का भला हो इसलिए कर रहे हैं, तो आप सन्यासी नहीं हैं. सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुत्याग विचक्षणा. And what do you mean by त्याग? The meaning of the त्याग is giving up the fruits of our karma. So whatever you do, you are gonna get a fruit.
राइट, कुछ भी काम करते हैं, जैसे आप जॉब में जाते हैं तो आपको सैलरी मिलेगी, सो दैट इज योर फ्रूट। आप स्टडी करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, दैट इज योर फ्रूट। सिमिलरली आप कहाँ पे भी कुछ काम करेंगे आपको कुछ तो मिलेगा, तो दैट इज योर फ्रूट, राइट। अच्छे काम करेंगे तो पुण्य मिलेगा, सो पुण्य इज योर फ्रूट। बट व्हाट डू यू मीन बाय त्याग? त्याग का मतलब है आई विल ओनली वर्क, आई विल ओनली सर्व, आई डोंट वांट एनी fruit, right? That is tyaga. So sannyas means giving up the activities which are not conducive for spiritual enlightenment. समझ रहे हैं? जो खुद के लिए काम कर रहे हैं उन सारी चीजों को छोड़ देना, इसे कहते हैं संन्यास। और त्याग का मतलब क्या है? त्याग का मतलब है कि हमें जो भी फ्रूट्स मिलने वाले हैं, जो भी रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, उसको छोड़ देना, उसे कहते हैं त्याग। त्याज्यम दोषवद्दीते दित्ते के कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यमिति चापरे। So now Krishna is telling, so sannyas means giving up everything, right? But Krishna says three things should not be given up at any point of time. So even a sannyasi, you may be sannyasi, you may be living in the Himalayas, you may be not doing any kind of work for yourself, right? You are a perfect sannyasi, but you should not give up three things. Which are these three things? Yajna, you should not give up sacrifice. यज्ञ करना कभी नहीं छोड़ना है. दान, should not give up charities. दान का मतलब ऐसा भी होता है कि आप दूसरों की मदद करिए, तो भले ही आपके पास पैसा नहीं हो परंतु आप अनेक विध प्रकार से दूसरों की सेवा कर सकते हैं, वो करिए. तपह, तप का मतलब होता है ऑस्टेरिटी, एंड सन्यासी शुड नॉट गिव अप ऑस्टेरिटीज. ऑस्टेरिटी का मतलब क्या है? तपस्या का मतलब क्या है? तपस्या का मतलब सिंपल है, कंफर्ट सिचुएशन के बाहर रहना, उसे कहते हैं तपस्या, राइट? Nobody will love to stay in the Himalayas without proper clothes, right? जैसे हम हिमालय में जाते हैं तो बहुत सारे कपड़े पहनने पड़ते हैं, राइट? तो ठंड से आप बच सकते हैं, परंतु तपस्या का मतलब क्या है? नहीं, willingly giving up everything, right? And just tolerating that is तपस्या. कंफर्ट सिचुएशन से बाहर आना, इसको तपस्या कहते हैं. तो सुबह जल्दी उठना भी एक तपस्या है, isn't it? बहुत सुबह स्पेशली आप देखेंगे ना 5-6 बजे इतना कोजी लगता है बेड, वो ठंडी हवा आती रहती है, ऐसे लगता है और सो जाओ और सो जाओ. जब आप कहते हैं नहीं मुझे उठना है, then that is तपस्या. Throwing your comforts out is तपस्या. तो आपके पास सब कुछ है पर फिर भी आप आपके कंफर्ट से बाहर आ रहे हैं, तो आप तपस्वी हो. समझ रहे हैं? आप ऑस्टेरिटी कर रहे हो, और शरीर के शुद्धिकरण के लिए तपस्या आवश्यक है, राइट? So he is saying, Krishna is telling, three things has to be done even if you are a sannyasi. यज्ञ, तप एंड दान. तो आपको यज्ञ करना है, दान भी देना है, दूसरों की मदद भी करनी है, और तप करना है. आपको अनकंफर्टेबल सिचुएशन में रहना पड़ेगा, आपके शरीर को आपको शुद्धिकरण करना पड़ेगा. द अदर डे आई वाज गिविंग द एग्जांपल. तप का मतलब होता है जलाना, तप का मतलब होता है हीट इट अप, गरम करना शरीर को. शरीर को गरम कैसे किया जाता है? शरीर को गरम करना मतलब उसको अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालना. जैसे व्हेन यू टेक आउट द गोल्ड, गोल्ड इज वेरी इम्प्योर, देन यू हैव टू पुट दैट गोल्ड इन अ फायर, राइट, एट वेरी हाई डिग्री centigrade fire, and then the gold becomes purified. Similarly, when you want to purify your own body, usko तपाओ, उसको अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालो, राइट? जस्ट डोंट सीक कंफर्ट. अरे बस आज बैठे, बस ऐसे ही बैठे रहो और मूवी देखते रहो नेटफ्लिक्स पे, यूट्यूब पे. No, put your body in uncomfortable situation. Do those things which are described or prescribed in the Vedas, and you don't like that. What we don't like? We don't like to recite the verses. You recite. Get Gita in front of you and recite.
योर माइंड विल नॉट लाइक अरे बहुत पक गई यार ये क्या पढ़ना है, बट यू डू दैट। तपाओ अपने शरीर को, एक आदत डालो, फोर्स योरसेल्फ, राइट। मन को कंट्रोल करो, अपने आपके शरीर को तपाओ, एक जगह पे बैठने की आदत लगाओ, राइट। देयर आर मेनी किड्स दे कैन sit at one place and 15 मिनट बाद उठते हैं और ये क्या चल रहा है वो क्या चल रहा है, ऐसे कैसे पढ़ाई होगा। यू हैव टू, आपके शरीर को तपाना होगा, तपस्या करनी होगी, राइट। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागी भरसत्तम, त्याग को ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तित। सो 3 काइंड के रिनंसिएशन है, ये सन्यास के भी 3 प्रकार है। अभी देखते सन्यास के क्या प्रकार है। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्, यज्ञ दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणीम्। तो ये जो यज्ञ है, जो सैक्रिफाइस है, जो यज्ञ दान, जो दान है, जो तप है, वो क्या करता है, जो भी लिबरेटेड लोग हैं, जो भी मुनि लोग हैं, उनको भी शुद्धिकरण करता है। तो हमेशा ये चीज हमें करनी चाहिए। तो आप कहेंगे कि यज्ञ कैसे करना है, हमको सारा वुड वगैरह लाना है क्या, हमको वो सारा घी वगैरह लाना है क्या, राइट। कृष्ण ऐसे कह रहे क्या, कह रहे होंगे, परंतु हमने 10वें अध्याय में एक अमेजिंग चीज दिखी। कृष्ण कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञ में कौन हूं मैं, जप यज्ञ। So the best of the यज्ञ is जप यज्ञ। समझ रहे आप। तो जप करना सबसे इंपॉर्टेंट है, जप, दान और तप। और मैंने बताया जब आप जप कर रहे हैं ना, तो आप तप भी कर रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉडी तभी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में होती है, आपके मन को अच्छा नहीं लगता जप करना, राइट। आप जैसे ही जप करने लग जाएंगे, मन यहाँ से वहां एक बंदर की तरह, जस्ट लाइक अ मंकी, ही गोज फ्रॉम वन ट्री टू अनदर ट्री, जस्ट jumping. Similarly, when you are chanting Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare, it's just jumping from one tree to another tree, right. So it's a tapasya to control the mind, so it is tapasya. So japa is also tapasya. So when you are doing jap, you are doing 2 things, yagya and tapa. तो थोड़ा सा आपको दान करना है, तो तीनों चीज कृष्ण जो बोल रहे हैं वो कंप्लीट हो जाएगी, राइट। और कृष्ण कैसा है, दिस 3 थिंग्स दे आर प्यूरिफाइंग टू द ऑल लिबरेटेड बीइंग्स आल्सो, राइट। There is amazing shlok in the Srimad Bhagavatam. It says, why this japa, right? Shukadeva Goswami is telling to Parikshit that कलेर्दोष निधे राजन् अस्ति एक महान गुणा, कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत्। कलेर्दोष निधे राजन्, इन दिस कलियुगा, कलियुग जैसे हमको पता है कि अभी कलियुग चल रहा है। कलियुग का मतलब क्या है, कलह युग। कलह में क्या होता है, झगड़े होते हैं। आप देखिए जरा आजू बाजू देखिए, कहीं ना कहीं तो आपको मारपीट की आवाज आएगी, कहीं ना कहीं आपको झगड़े की आवाज आएगी। तो ये कलयुग है, हर कोई एक दूसरे से झगड़ रहा है, चाहे वो कोई एक मिडिल क्लास फैमिली हो नहीं तो अपर क्लास फैमिली हो, हर जगह पे झगड़े होनी है। बट आप देखते हैं अनिल अंबानी एंड मुकेश अंबानी आर फाइटिंग विद देमसेल्फ। तो कोई भी हो, आपके पास पैसा है पैसा नहीं है, आप यहाँ पे झगड़ेंगे, कलह युग है ये, राइट। तो सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी व्यास देव जी के पुत्र थे, तो वो क्या कह रहे हैं, कले दोष निधि राजन, इन दिस कलयुगा देयर आर अनलिमिटेड फॉल्ट्स, बहुत ही फॉल्ट्स है, बहुत ही खराबी है इस कलयुग में। अस्ति एक महान गुण बट देयर इज वन बेनिफिट। हमको लगता है यार कहाँ पे जन्म हो गया हमारा, कलयुग में कितने सारे प्रॉब्लम्स है, कितने सारे ट्रबल्स हैं, बट अस्ति एक महान गुण, देयर इज वन बेनिफिट ऑफ टेकिंग बर्थ इन अ कलयुग। सो वी आर रियली फॉर्चुनेट कि हमारा कलयुग में बर्थ हुआ है। वी आर रियली फॉर्चुनेट that we are born in the age of Kali,
Kirtanadev Krishnasya Mukta Sangha Param Vrajet. Just by doing kirtan, Mukta Sangha, you will get the mukti. Right? In the previous ages, we saw if we wanted to please the God, we had to do tapasya, we had to do different kinds of yajna, we had to do different kinds of deity worship, archa vigraha ki seva. But in Kali Yuga, Kirtana Deva Krishna said, just sit at one place, chant attentively, focus your mind on chanting, chant at least one round and see the changes. Right? And that's why Krishna is telling, don't give up this yajna at any point of your life. So even you become a sannyasi or whatever, you should chant always. Nyatastute sannyasa karmano nopapadyate mohatyasya parityaga tamasa parikiridita. Now here Krishna is speaking about the renunciation. सन्यासी, तमोगुण का सन्यासी कौन होता है? तो सन्यासी में भी तीन प्रकार है, सत्वगुण का सन्यासी, रजोगुण का सन्यासी, तमोगुण का सन्यासी। तो ये सत्वगुण, ये तमोगुण का सन्यासी कौन है? जिसको कुछ पता ही नहीं कि सन्यास क्यों लिया है, बस ले लिया, ऐसे ही देख लिया कि सन्यासी को इज्जत मिलती है बहुत, सन्यासी को एक मठ वगैरह मिलता है, तो चलो सन्यास ले लेते हैं। तो दैट इज मोड ऑफ इग्नोरेंस। दुख मिते तेव यत्कर्म काया क्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राज संत्याग नैव त्याग फलम लभेत्। So anyone who gives up prescribed duties that are troublesome or out of fear or body discomfort is said to have the renounce or renounce the mode of goodness. तो ये स्पेशली अर्जुन के लिए है, राइट? तो कृष्ण ने क्या कहा? पहले किसके बारे में बताया? तमोगुण का सन्यासी। तमोगुण का सन्यासी को पता नहीं होता है क्यों सन्यास ले रहा है, बस ले लिया। नाउ देयर इज रजोगुण का सन्यासी, द सन्यासी हु इज इन अ मोड ऑफ पैशन। सन्यासी का मतलब हमने देखा है, सन्यासी का मतलब क्या है? कि जो अपने काम छोड़ के भगवान की सेवा में लग जाता है, उसे कहते हैं सन्यासी। द रियल मीनिंग ऑफ सन्यासी इज दैट, राइट? ही डजंट वर्क फॉर हिमसेल्फ एनीमोर, वो खुद के लिए काम नहीं करता, राइट? यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि सन्यासी का मतलब, जो रजोगुण का सन्यासी है वो क्या है एक्चुअली? जो देखता है कि मेरे जो काम है ना बहुत कठिन है, हाँ, इसलिए मुझे ये छोड़ना पड़ेगा, मुझे अच्छे नहीं लग रहे ये काम, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ और सन्यास ले रहा हूँ। तो वो रजोगुण का सन्यासी, उसका कुछ फायदा नहीं होता, वो ऊपर नहीं जा सकता। तो ये अर्जुन के लिए। अर्जुन क्या सोच रहा था मन में? अर्जुन सोच रहा था कि मैं सन्यास ले लूंगा और ये सारी जो परेशानी क्यों होने वाली है, ये युद्ध से परेशानी होने वाली है, राइट? और मुझे ये परेशानी नहीं चाहिए, ये झमेला नहीं चाहिए। हम कहते हैं ना झमेला, झमेला मतलब आई डोंट वांट दिस ट्रबल, राइट? Killing your godlike relatives. Yeah, some relatives were really good, like Bhishma and Drona and Kripa, they were really good, and he was not willing to kill them, so he was thinking sannyas le leta hu. पर कृष्ण ने कहा आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है और इसलिए आप संन्यास ले रहे, तो वो आपको कभी मुक्ति नहीं प्रदान करेगी, राइट? हम सोचते मेरा जॉब अच्छा नहीं यार। I had my friend, one friend. Now he was quite frustrated with his job, right? अरे बहुत परेशानी यार, कितना परेशानी, दूर जाना पड़ता है, कहाँ CST जाना पड़ता है, लोकल ट्रेन में झमेला है बहुत, और सैलरी भी अच्छी नहीं मिलती। काम कर लेता हूँ, संन्यास ले लेता हूँ, संन्यास ले लूंगा। हाँ, और उसकी फैमिली भी अच्छी थी, मतलब उसको कुछ, he was not opposed at all, so he took a sannyas, right? सब छोड़ दिया, and then he was offered those clothes, saffron clothes. भाई 1 साल में रिटर्न आ गया, बोला नहीं सन्यास नहीं जम रहा है। तो क्यों नहीं जम रहा है? क्योंकि वो आपका स्वभाव नहीं है। तो कृष्णा इज टेलिंग अर्जुना, योर स्वभाव इज टू फाइट, सो फाइट। डोंट गिव अप योर ड्यूटीज immaturely. Don't think that now my job is very troublesome and that's why I am leaving the job and I am taking a sannyas. No, that sannyas will not work. Let's go ahead. कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव त्याग सात्विको मतः। और सन्यासी का मतलब केवल यही नहीं होता
कि आप सब समाज को छोड़ के जाओ, राइट। जनरली लोगों का एक मानना होता है, वो सन्यासी जो होते हैं ना, उनसे दूर ही रहते हैं। वो सोचते हैं हमारे बच्चे को ये कुछ सिखा देगा, बाबा इससे दूर ही रहो, हमारे बच्चे को भी लेके जाएगा, सन्यास करवा देगा, इससे हमारे बेटे शादी नहीं करेंगे, बेटी शादी नहीं करेंगे, सब सन्यास से रहेंगे। नहीं, सन्यासी का मतलब होता है, इनफैक्ट जो गृहस्थ में भी होता है वो भी सन्यासी हो सकता है, जब तक वो अपने कर्म, नियतम क्रियते जुनः, जो अपनी कर्म है वो कर रहा है और फल की अपेक्षा नहीं करता। He's not bothered about the fruit. He's just doing his duties because duties to be done. समझ रहे हैं आपको? जस्ट वो ड्यूटीज कर रहा है अपनी, क्योंकि ड्यूटीज होनी चाहिए इसलिए कर रहा है, उसको कुछ फल से कुछ लेना देना नहीं है, तो वो भी आदमी सन्यासी होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ छोड़ के जाएंगे तभी आप सन्यासी कहलाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। सन्यासी मतलब आप घर में भी बैठ के सन्यासी रह सकते हैं। यू कैन बी एट होम एंड यू कैन बी अ सन्यासी। हाउ? जस्ट डोंट बी अटैच्ड टू द फ्रूट्स ऑफ योर एक्शंस। त्याग कर दो सबका, राइट? I hope you are understanding, because this is little higher level concept and you read Gita quite a few times, then these things sink in, right? And now you are kids, I don't think so you must be knowing about sannyasi and all, but let's study. बताया है, स्टडी कर लेते क्योंकि फिनिश भी करना है। Okay, let's go ahead. This is the important shloka. Panchetani mahabaho karnani nibodh me sankyam krutanti proktani siddhaye sarva karmanam. So there are 5 things required, 5 causes required to accomplish anything. There are 5 things. जैसे मैं ये फोन उठा रहा हूँ, तो फोन उठाने की क्रिया एक है, परंतु 5 चीजें उसे कारणीभूत है, और उसमें से एक भी चीज नहीं होगी तो फोन उठाया नहीं जाएगा। So, कौन सी चीजें ऐसी है? क्योंकि मैं why I am telling why this श्लोका came, because many times we think कि मैं कर रहा हूँ, मेरे सिवा कुछ नहीं हो रहा है, मैं कर रहा हूँ, मैं दान दे रहा हूँ, मैं तप कर रहा हूँ, मैं तो हमको लगता है कि हम कर रहे हैं, पर एक्चुअली वैसा नहीं होता। तो कृष्ण कहते हैं there are 5 causes for any action to take place. So which are these 5 causes? Adhisthana, the God is required. ठीक है? तथा कर्ता, soul is required. Performer, the soul is required. Right? Dead body cannot lift this phone. Can dead body lift the phone? No. Dead body has the body. Dead body has the body, but it does not have a soul. That's why she cannot. That body cannot. It cannot lift the phone. Right? Then Karanam, that means various senses. Various senses are also required. So 3 things happen. 3 things are there, right? You need a body, you need a soul, you need a senses, right? Then pruthak vidham vividhasya pruthak cheshta. So different kinds of endeavor. You need to put your energy to pick up the phone, right? You need a senses, but senses will not do the things. You need an energy to put the phone, and then finally you need Daivam. What do you mean by that? You need a super soul. Without the sanction of super soul, you cannot do anything. Without the sanction of super soul, you cannot do anything. Right? So we cannot say that I am lifting the phone. So it's a simple thing that super soul is sanctioning the action, and that's why you are able to pick up the phone. Okay, so 5 things necessary to do any kind of work, any kind of job, right? One is you need a body, right? This body, you need the soul, you need the senses, you need the endeavor, you need to put your energy, right? And then finally you need a sanction from the God, right? So nobody can say that I am doing this, I am doing that. Sorry, without the sanction of the God. Yeah, there are some people ना, they say मैंने आज इतना दान कर दिया, देखो I am so great, मैंने आज इतना यज्ञ किया। अरे सैंक्शन किसने किया? सुपर सोल ने किया ना, तो आपने कुछ नहीं किया, वो तो सुपर सोल की बदौलत आपने सब कुछ किया। Let's go ahead.
Now here it is said, it's amazing shlok. Sa pashyati durmatihi tatreva sati kartaram atmanam kevalam tuyah pashyatya kruta buddhi tvanna sa pashyati durmatihi. What do you mean by that? So here in this particular shloka, Krishna is telling the one who sees that all these five factors are responsible to do any kind of work, he is the person who is actually seeing everything. Otherwise we see कि केवल मैं कर रहा हूं, मैंने किया ना ये सब. जो उस पांचवें व्यक्ति को नहीं देखता, पांचवा व्यक्ति कौन है? सुपर सोल. First is our body. To do any kind of work, we need a body, we need a soul, we need our senses, we need our power, and then we need the soul, super soul, the Paramatma, right? When the Paramatma is not sanctioning, then we cannot do anything, right? So here Krishna is telling the one who sees the Paramatma, that Paramatma, he is actually seeing everything. सर्वभूतेषु अनेकं भावं भव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्. So the person who sees, okay, now here the knowledge के भी तीन प्रकार किए गए हैं, सत्वगुण knowledge, रजोगुण knowledge and तमोगुण knowledge. Let's see that. In the sattva-gun knowledge, you see that the presence of super soul everywhere. You see super soul everywhere, and that is knowledge in the sattva-guna, right? Through they are divided into innumerable forms. You should understand to be mode of goodness, right? So you see that all living entities have that super soul within them, and that is sattva-guna knowledge. The knowledge which teaches you about super soul, that is knowledge in sattva-guna. Simple. पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नाना भाव पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं. The knowledge which says no, there is no super soul, everyone is individual. Of course everyone is individual, but you know, in the tamasic rajasic knowledge, they don't believe in a super soul. They say Atma and Paramatma is one. So that is rajasic knowledge. Atma and Paramatma is one, right? But in the 13th chapter we saw Krishna says no, Dehesmin Purushah Paraha. Yes, there is a soul, but Purushah Paraha, there is one super soul also in that Dehesmin, in that body. There are two things, there are two living beings, and we saw that, you know, Mundaka Upanishad. There was an example of two birds. Yeah, one bird is just seeing that what other bird is doing, right? And just a minute. Just doing. Constantly. Extremely sorry for disturbance. So the knowledge which tells that there is no super soul, only there are souls. That is Rajasic knowledge. And in the Tamasic knowledge, they don't believe in a soul at all. So Sattva-guna knowledge is what? You see super soul everywhere. You see super soul everywhere. Okay? In the Rajasic knowledge, you see there is no super soul, or either they say that the super soul and the soul is one. And in the Tamasic knowledge, they don't believe in a soul at all. They say body is all. जैसे आप देखो ना, आप किसको बताओ you are not this body, you are soul, they will say पागल है क्या? Because they have not been taught, right? What they will say, पागल है क्या? आप किसको भी बोल के दिखाओ आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो. And you see the behavior of the people, they are so attached to their body. Oh my, this is my body. But please understand that one day you are gonna leave this body. That's why you see the second chapter. Second chapter is an amazing chapter. Dehino asmin yatha dehi kaumara yauvanam jara tatha dehantara prapti dhiras tatra namuyati.
The श्लोक is very simple. The श्लोक says जो सोल होता है वो बालक के शरीर से युवा के शरीर में जाता है, युवा के शरीर से बूढ़े के शरीर में जाता है, और वही आत्मा मृत्यु के बाद दूसरे शरीर में चली जाती है। इसका मतलब है शरीर कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, तो हमें भी शरीर छोड़ना है। सिंपल चीज, isn't it? So in the tamoguna, person thinks ये मेरा शरीर है। Okay, so already I explained about the tamoguna. Niyatam, we will take 10-20 more shlokas, not 20, 10 more shlokas, and then we will conclude. So please don't leave the class, right? Niyatam sangrahitam ragadvesha कृतम अपल प्रेत्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते. That action is regulated and performed without attachment, without love or hatred, and without desire for creative result is said to be in the mode of goodness. तो अभी यहाँ पे एक्शन की भी 3 प्रकार बताए गए हैं. And what do you mean by action? Our day-to-day action. हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, हमारी जॉब को जाते हैं, and we do study. जो भी काइंड ऑफ एक्टिविटीज करते हैं उसके भी 3 टाइप्स है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, राइट? नाउ इन सत्वगुण द पर्सन इज नॉट अटैच्ड टू द एक्शन, द फ्रूट्स ऑफ एक्शन, कि मैं ये करके मुझे ये मिलेगा. नो, ही इज जस्ट डूइंग बिकॉज इट इज टू बी डन, राइट? जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूं, ऐसे नहीं सोच रहा हूं कि मुझे कुछ मिलने वाला है. नो, इट इज टू बी डन, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट. ये करना है इसलिए मैं कर रहा हूं. ही इज नॉट थिंकिंग कि मुझे इससे कुछ मिलेगा, मुझे इससे कुछ फायदा होगा. नो, ही इज नॉट डूइंग दैट. ठीक है? यत्तु कामे कर्म सांख्यकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायंस तद्राज्य समुद्धर. बट एक्शन performed with a great effort by one seeking to gratify senses. Now तमोगुण, रजोगुण का क्या है ना, हर जगह पे वो आनंद देखते रहता है. मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा. तो सिंपल चीज में आप ध्यान रखिए. सत्वगुण मतलब क्या? मुझे ये करना है, मैं करूंगा, मुझसे फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, मुझे पता नहीं. रजोगुण का कैसा है? मुझे इससे क्या मिलने वाला है, कितना पैसा मिलेगा, राइट? सो वन हु इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट फुलफिलिंग हिज ओन डिजायर्स, तो समझ जाने का दैट पर्सन इज इन मोड ऑफ रजोगुण. And he is always greedy, right? He is always thinking मुझे कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा. In that sense, so sattva gun means he just doing because it to be done. मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे पता नहीं मैं पास होऊंगा कि नहीं, पर I will put my 100% effort. That's his mode of goodness. What is rajogun? In the rajogun, person is only concerned about his gratification. मैं करूंगा, मुझे ये मिलना चाहिए. Now tamogun, is little dangerous. Now in tamogun, person think of his enjoyment, but at the cost of hurting others. At the cost of hurting others, right? वो दूसरे को मारेगा, पीटेगा, right? उनसे पैसे छीनेगा, right? So that is work in the mode of ignorance. अनुबंध क्षयम, हिंसा करता है, वो दूसरों को मारता है. पौरुष मोहाद्यारभ्यते कर्म यत्ताम तमसुच्यते. तो इसको तमोगुणी काम कहते हैं. आप देखिए ना, कोई लोग रहते हैं वो दूसरों को परेशान करके पैसा कमाते हैं, राइट? दैट इज तमोगुणी कर्म, राइट? दूसरों की हिंसा करके, दूसरों को मार के वो पैसा कमाते हैं. Just take an example of slaughterhouse. In a slaughterhouse, small innocent animals are killed. Why they are killed? Because the owners of the slaughterhouse, they want to earn money, isn't it? They want to earn money, and that's why they are killing the innocent beings. So this work, this activity comes under tamogunic activity. Let's go ahead. Okay, now here Krishna is telling, do your duties, okay, with a great determination and without wavering for success or failure, is said to be worker. Now here Krishna is explaining the worker who is in a mode of goodness,
the worker who is in mode of ignorance, the worker who is in a mode of passion. Three kinds of workers. Now the worker who is very determined about his work, and the worker who is enthusiastic doing his work without thinking कि मुझे इससे क्या मिलेगा, he is the worker in the mode of goodness, right? So he's just performing his duty for sake of doing it. He's not bothered कि मुझे इससे क्या मिलेगा, क्या फायदा है, क्या नुकसान है. So that is worker in the mode of goodness. So रजोगुण में क्या होगा? The worker who always think of his pleasure. अरे मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा. Who is always envious, who is always greedy and impure and moved by the joy and sorrow. So that person, that worker is in mode of passion. The worker in the ignorance क्या है? I hope you are understanding. Simple चीज है. अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैकृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते. और जो वर्कर होता है हमेशा लेजी होता है, प्रोक्रास्टिनेटिंग होता है और ऑलवेज मरो जा रहे, क्या जिंदगी में कैसा हो गया यार, सैलरी नहीं आ रहा है बराबर टाइम पे, पैसा नहीं आ रहा है, और हमेशा ऐसा गिरा हुआ रहता है, पड़ा हुआ रहता है, कल करेंगे, परसों करेंगे. Who is not bothered about his work. He is worker in the mode of ignorance. तो सत्वगुण का वर्कर क्या होता है? एंथुजियास्टिकली काम कर रहा है, वो नहीं देखता कि कितना पैसा मिलेगा वगैरह वगैरह वगैरह. ही इज डूइंग वर्क फॉर, क्योंकि वो समझता है कि ये मेरा स्वभाव है ये काम करना, राइट? जैसे कोई वेल्डिंग करता है, जैसे कोई लेट से कारपेंटर है, उसका वो स्वभाव है कारपेंटरी करना. हाँ, तो वो ये नहीं सोच रहा है कि मुझे इससे कितना मिल रहा है, पर मैं सेटिस्फाई होना, क्योंकि जब आप खुद का काम करते हैं ना तो आप सेटिस्फाई रहते हैं, राइट? तो आपका स्वभाव पहचानो, आपको क्या अच्छा लगता है और वही काम के ऊपर आप फोकस करो. जैसे अर्जुन का काम क्या है? अर्जुन का काम है युद्ध करना. यदि वो दूसरा कुछ काम करेगा वो तो सुखी नहीं रह पाएगा. हाँ? तो यहाँ पे तमोगुण का क्या बताया भगवान ने कि जो हमेशा लेजी होता है, कल करेंगे, परसों करेंगे, कोई बात नहीं, होते रहेगा ना काम, कहाँ जा रहा हूं मैं. तो दिस इज वर्कर हु इज इन मोड ऑफ ignorance. Now here Krishna is speaking about determination. There are three kinds of determination also. Determination समझते हैं ना? Just like we saw the story of Dhruva. Dhruva was so determined. Determination मतलब निश्चय कर लेना एक. जैसे भीष्म ने निश्चय किया था, प्रतिज्ञा की थी, उसी प्रकार से डिटर्मिनेशन. नहीं, मैंने ये किया है तो ये करके ही रहूंगा. तो उसके भी तीन प्रकार है, goodness, passion and ignorance. Will not go into the details. Now here please pay attention. Now these are the some last verses, few verses, right? इसके बाद हम खत्म करेंगे. So don't worry. आपके सिर के ऊपर से भी जा रहा है तो कोई चिंता नहीं है, सारे प्रश्न का उत्तर मैं आखिर में दे दूंगा. Now this is important. विषयेन्द्रिय संयोगात् तदग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमीव तत्सुखम राजसस्मृतम. इसके पहले एक था यत् तदग्रे विषमीव परिणामो अमृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम. वेरी इंपॉर्टेंट. सो सुख के भी, हैप्पीनेस के भी तीन प्रकार है. हैप्पीनेस के भी तीन प्रकार है. द हैप्पीनेस इज इन मोड ऑफ गुडनेस, happiness is in the mode of passion, and happiness is in the mode of ignorance. सत्वगुणी सुख, रजोगुणी सुख और तमोगुणी सुख. ये सत्वगुणी सुख क्या होता है? सत्वगुणी सुख ऐसा होता है कि पहले आपको बहुत परेशानी होगी और बाद में सुख आएगा, उसे सत्वगुणी सुख कहते हैं. बाद में बहुत पहले बहुत परेशानी आएगी, बहुत कठिन लगेगा आपको कि नहीं करना है, ये नहीं करना है, पर बाद में आपको लगेगा, अमृत का अनुभव होगा. You will feel, oh, it's amazing. उसे कहते हैं सत्वगुणी सुख. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, सुबह जल्दी उठना. सुबह जल्दी उठना, इट इज पेनफुल. यहाँ पे भगवान ने बताया पहले विष जैसा लगेगा, आपको लगेगा अरे क्या कर रहा हूं मैं, नहीं हो रहा है, नहीं उठना जा रहा है, नींद आ रही है, फिर से नींद आ रही है, बहुत कठिनाई होगी आपको उठने के लिए. तो ये जहर के जैसा, इट्स लाइक अ पॉइजन, राइट? Getting up early in the morning is a poison, but Krishna is telling this poison will turn into amrita, nectar after some time, right? आपकी हेल्थ अच्छी होगी,
आपकी वेल्थ अच्छी होगी, ऐसे बोलते हैं। those who wake up early in the morning, Lakshmi Devi is very pleased with them, so she gives them a lot of fortune. So get up early in the morning, don't sleep late. Right? बहुत बार ऐसा होता है कि स्कूल दोपहर की होती है, आफ्टरनून स्कूल इज देयर, सो व्हाट स्टूडेंट डू, they just keep sleeping till 10 o'clock, 11 o'clock. It's very dangerous. Okay, so Krishna is telling here, the happiness which is in the initial stage feels like a poison, but later it will give you the amrut anubhav, the nectarian experience. That is the real happiness. That is the happiness in the mode of goodness. Just say what I'm telling you, chant on a beats. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So you're chanting, right? You are chanting and you are sitting, but it's so uncomfortable. आपको लगता है क्या यार एक जगह पे बैठा हूँ, and then you are focusing. Oh my God, I'm focusing. मेरा सिर दुख रहा है. I'm trying to focus, right? But please understand, you are going through the problems, right? Now you are feeling it's very poisonous. विषमे, इट्स अ विषय में बहुत पॉइजनस लग रहा है एक जगह पे बैठना, एक ही मंत्र जप करना. आप सोचेंगे क्या एक ही मंत्र बार बार जप कर रहा हो, ये पॉइजनस लगेगा, राइट? जहर जैसा लगेगा. पर कुछ समय बाद आपको आनंद की अनुभूति होगी, आप रह नहीं पाएंगे. तो उसे कहते हैं सत्वगुणी सुख. तो पहले परेशानी होगी, परेशानी समझ के उसे छोड़ मत देना. जैसे बहुत सारे बच्चों ने, देयर वर 108 किड्स in this particular course, but they left because they thought कितनी परेशानी है. Many boys, why did they left? Their parents told me कि सर आप 8 बजे लेते हैं, आपने 10 बजे लो, मेरा बच्चा अटेंड करेगा. But then I told that I want kids to become a yogi. और योगी का मतलब क्या होता है? जो थोड़ा हटके चीजें करता है. मैंने कहा उनसे, आई एम कॉलिंग देम बाय 6 AM. नो, आई एम जस्ट कॉलिंग देम बाय 8 AM. और 8 बजे क्या बड़ी बात है? Many parents were telling me, there were around 10-20 parents who have written to me that कि क्लास को ना बाद में लो, 10 बजे के बाद लो, दोपहर को लो. पर मैं बताऊं, सुबह का जो आप सुनते हैं ना, सुबह का आप पढ़ते हैं ना, इतना मजा नहीं आता है. इनफैक्ट आई कैन टेल यू, आई एम टेकिंग वन इवनिंग बैच ऑल्सो. तो इवनिंग में मजा नहीं आता, क्योंकि इवनिंग का टाइम है, तमोगुण का टाइम है. तमोगुण में आप पढ़ाई कैसे करेंगे? तो आपका जो बैच है मॉर्निंग का, इट्स अमेजिंग. यू आर ग्रास्पिंग इज अमेजिंग, राइट? बिकॉज नाउ सत्व गुण का इन्फ्लुएंस है, राइट? सो आपको ऐसा नहीं समझना है कि अभी बहुत परेशानी हो रही है तो आई विल नॉट डू दैट. नो, जहां परेशानी है वो चीज करनी चाहिए, राइट? जहां पे रिस्क है, जहां पे अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, समझ जाने का कि बाद में बहुत सारा सुख आने वाला है. और वो है एक्चुअली हैप्पीनेस वाला सुख. लेट्स गो अहेड. जहां पे पहले सुख है, जहां पे पहले सुख है, हाँ, वहां पे बहुत सारी बाद में परेशानी आ सकती है. जस्ट टेक एग्जांपल, यू गो टू होटल एंड यू फील, अरे ये लाओ, वो खाओ, वो खाओ, सो मजा आ रहा है, आज कितना जबरदस्त है ये खाना, हाँ. पर बाद में दूसरे दिन आपका स्टमक प्रॉब्लम कर देगा, कंजेस्टेड हो जाएगा, कंजेशन हो जाएगा, राइट? तो कृष्ण कह रहे हैं, द हैप्पीनेस विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्टेक्ट ऑफ द सेंसेस. हाँ, जब हमारी इंद्रियां कुछ पदार्थों के साथ आती है, जैसे हमारी टंग है, टंग एक इंद्रिया है, आंख एक इंद्रिया है. जैसे हमने कहा, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, राइट? ईयर्स, आईज, नोज, टंग एंड स्किन. सो व्हेन दिस indriyas, when these senses come in the contact with the objects of senses, for example, this is my tongue comes in the contact with ice cream and I experience the pleasure. So Krishna is saying this pleasure is gonna give you this miseries later, not immediately, it will give you miseries for sure.
it is going to give you misery for sure. And that's why in the 5th chapter also we saw that how Krishna was telling, ye hi sansparshaja bhoga dukkha yonaya evate, dukkha yonaya evate. So from this, dukkha yona का मतलब क्या होता है? From this pleasure the miseries are going to take birth. तो जो भी प्लेजर हमें इन इंद्रियों के द्वारा प्राप्त हो रहा है, आप लिख के रखिए, एक ना एक दिन वो आपको मिजरीज देने वाले हैं। तो इन इंद्रियों के ऊपर इतना आप समय व्यर्थ ना करिए, राइट? आपको पता है मछली को कैसे पकड़ते हैं? फिशिंग आपने देखा है क्या? फिशरीज आपने देखा है? कैसा होता है ना, वो एक हुक होता है, उस हुक में एक कुछ तो वो आटे का दाना लगा देते हैं, आटा लगा देते हैं और ऐसे नदी में डालते हैं। फिश क्या करता है? खाता है, वो हुक इधर अटक जाता है और उस प्रकार से फिश को पकड़ते हैं। तो फिश वेरी अटैच टू द टंग। फिश सोचती नहीं कि फ्री में कहां से मिल रहा है मुझे, फ्री में कहां से मिल रहा है, फ्री में कहां से मिल रहा है। फिश वैसे सोचती नहीं, बिकॉज इट इज अटैच्ड टू द टंग। इन फिश केस द पावर ऑफ टंग इज वेरी पावरफुल, ठीक है? तो वो अटक जाती है और it gets killed, isn't it? Do you know how they catch the deer? डियर को कैसे, हिरन को कैसे पकड़ते हैं आपको पता है? हिरन को ना संगीत बहुत प्रिय होता है, तो संगीत आप लगाएंगे ना, हिरन वहां पे भाग के आ जाता है। तो उसके कान जो होते हैं बहुत, ही इज वेरी अटैच्ड टू हिज ईयर्स। तो शिकारी क्या करता है? गाना लगा देता है, कुछ तो अलग अलग प्रकार के आवाज निकालता है, एंड टू दैट साउंड द डियर रन्स एंड द हंटर कैचेस देम, राइट? तो इस प्रकार से अलग अलग इंद्रियां हमें अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स में डाल सकती है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं डोंट बी अटैच्ड टू दिस सेंसेस। तो एंजॉयमेंट इन पैशन इज व्हाट? वेयर यू गेट अ प्लेजर बिफोर। आपको पहले मजा आ रहा है पर बाद में बहुत परेशानी होने वाली है। जैसे यहाँ पे दिया एग्जाम्पल, कृष्ण ने बताया कि जब आपकी इंद्रिय विषयों के संपर्क में आती है तो आपको जो आनंद की अनुभूति होती है, द प्लेजर यू एक्चुअली एक्सपीरियंस, इट इज गोना गिव यू अ मिजरी लेटर। एंड वी सॉ द फूड इन द मोड ऑफ पैशन, टू हॉट, टू सोर, isn't it, and too salty। तो ये सारे हमारे शरीर में विविध प्रकार के डिसीजेस पैदा करते हैं, राइट? लेट्स गो अहेड। दुख आमय शोक प्रधा, ऐसे लिखा है ना भगवान ने। तो ये सारे प्रकार के आप फूड खाएंगे तो क्या होगा? दुख होगा, आमय होगा। आमय का मतलब डिसीजेस होंगे। मोस्ट ऑफ द डिसीजेस क्यों है पता है आपको? क्योंकि लोग गलत खाना खाते हैं। खाने की कमी नहीं है, आजकल खाने की कमी नहीं है। देखिए रेशन दुकान पे तो गवर्नमेंट ने तो 1-1, 2-2 रुपए में दे प्रोवाइड फूड, राइट? दे प्रोवाइड ग्रेन्स। तो खाने की कमी नहीं है। कमी किसकी है? अक्कल की है। कभी क्या खाना है, कभी क्या नहीं खाना है, उसकी कमी है। तो कुछ भी कभी भी कुछ भी खाते हैं तो डिसीजेस पैदा होता है, राइट? दुख आमय शोक प्रदा, इसलिए हमें हमेशा सात्विक खाना खाना चाहिए। यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तम तत्तामसमुदाहृतम्। इसका मतलब क्या है? आनंद जो कि हमें नींद से मिलता है, दैट इज, नींद से मिलता है, आलस्य से मिलता है। आपने देखा होगा कोई लोग बस सोने दो यार, बस जिंदगी में एक ही काम करना है, बस सोना है। आपने देखा होगा कई लोगों को just love sleeping because they are experiencing the pleasure in the mode of ignorance. They love that pleasure and they are in the mode of ignorance. That's why they are loving that pleasure in the sleep. Yeah, of course sleep is needed, but not oversleep, right? When you oversleep, that means you are in a mode of ignorance. Now Krishna is telling, now these modes of 3 modes are not only humans are bounded to this.
but all kinds of demigods, all kinds of rishis and saints, they are also bounded by this गुणा. सो आप समझ रहे हैं ना कैसा गुणा काम करता है. 14 चैप्टर में आप लोग थोड़े कंफ्यूज थे, अरे क्या है गुणास, क्या है गुणास, ये क्या है रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण. तो आप देख पा रहे हैं अभी डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पीपल हु आर इन डिफरेंट डिफरेंट गुणास. तो आपको चूज करना है आपको कौन से गुण में जाना है, राइट. सत्व गुण में आदमी काम करता है, कुछ भी कार्य करता है, भले ही वो यज्ञ करता है, दान देता है, वो केवल करता है क्योंकि उसको शास्त्र में बताया गया है इसलिए करता है. रजोगुण का आदमी क्यों करता है, क्योंकि उसे कुछ चाहिए, दान दूंगा तो ना पैसा मिलेगा, तो उसका एक डिजायर होता है. तो दैट पर्सन इज इन मोड ऑफ पैशन. देन तमोगुण, उसको कुछ पड़ी ही नहीं है, मैं करो न करो, वो तो सोया रहता है, मोड ऑफ इग्नोरेंस. Now here the work of the Brahmanas, the work of the Kshatriyas and the work of Shudras, and there are 4 kinds of people, right? We saw Brahmana, Kshatriya, Vaishya and Shudra, right? So we should not think that the division is made on the basis of birth, right? तो ऐसा होता था ना पहले, कई 50-60 साल 100 साल पहले, कि ऐसे कहते थे कि तो वो अलाउ नहीं करते थे, अब बोलते थे आपका जो जन्म है कम किसमें हुआ है, जाति में हुआ है, राइट. आप शूद्र है, आप आ नहीं सकते मंदिर में, ऐसे कहते हैं. मंदिर में अलाउ नहीं करते थे लोगों को, राइट. आपने सुना होगा. तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने वो सारा ये किया, राइट, रिफॉर्मेशन किया सोसाइटी का, राइट. और बाद में ये लोग कहने लग गए कि आपके शास्त्र में, हिंदुओं के शास्त्र में सब लिखा है, पर ऐसा नहीं है. कृष्ण ने तो 4थे चैप्टर में बता दिया था, गुण कर्म विभाग चातुर्वर्ण माया सृष्टम. 4 प्रकार के वर्ण मैंने बनाए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. वो किसके ऊपर डिपेंड है, आपके गुण और आपके कर्मों के ऊपर, आपके जन्म के ऊपर नहीं है. तो कोई किसका जन्म कोई लोअर कास्ट में भी हुआ हो, कोई लोअर जाति में भी हुआ हो, वो व्यक्ति भी ऊंचा बन सकता है, वो व्यक्ति भी ब्राह्मण बन सकता है. नोट इट डाउन, वो व्यक्ति भी ब्राह्मण बन सकता है. तो आप वेदों में कई एग्जाम्पल देखेंगे कि जिनका जन्म जो था बहुत ही निचली जाति में हुआ था, राइट. परंतु उन्होंने अपनी, एक उदाहरण देता हूं, जिनका नाम था जबाली. जबाली एक ऋषि थे. इसे देखा जाए तो जबाली का जन्म बहुत ही कम जाति में हुआ था, राइट. उनके पिता नहीं थे, बहुत ही गरीब थे वो, परंतु उन्होंने तपस्या की और ऋषि मुनि बने. वो बहुत बड़े ऋषि मुनि है वो, सत्यकाम जबाली. देखिए आप इंटरनेट पे सर्च करके सत्यकाम जबाली. तो अभी मेरे को एक एग्जांपल याद आ रहा है, वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. तो वेदों में कभी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया कि आप कम जाति के, आप उच्च जाति के हैं. जाति के ऊपर, जन्म के ऊपर किसी को ऐसे कभी नहीं सोचा कि ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण, ऐसे कभी नहीं है. यदि ऐसे होता तो अश्वत्थामा को अश्वत्थामा ब्राह्मण बनता, क्योंकि द्रोणा ब्राह्मण थे. और अश्वत्थामा इज कंसिडर्ड एज अ क्षत्रिय, राइट. इनफैक्ट परशुराम भी ब्राह्मण थे, परंतु वो क्षत्रिय बन गए. ठीक है, तो जन्म के ऊपर कुछ नहीं. और जो भी आपको कहता है कि आपके वेदों में ऐसा बताया, गीता में ऐसे बताया कि डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ऐसे कहते हैं बहुत सारे लोग. दे डोंट बिलीव इन भगवत गीता. वो कहते हैं कि ऐसा ऐसा होता है, आपकी भगवत गीता में सब ऐसा बताया, गलत गलत चीजें बताई है कि हमेशा डिस्क्रिमिनेशन करो, आप उच्च जाति के, अपनी जाति. भगवत गीता में कहीं पे भी नहीं बताया. इनफैक्ट कोई भी हमारे शास्त्र में ऐसा नहीं बताया. कृष्ण हमेशा कहते गुण कर्म विभाग अकॉर्डिंग टू योर क्वालिटीज that you have acquired from material nature and your activities, right. तो उसके हिसाब से ही आप कौन सी कैटेगरी में है वो आपका डिसाइड करेंगे, राइट. यदि कोई ब्राह्मण घर में जन्म लेके भी उसकी एक्टिविटी जितनी अच्छी नहीं है, चोरी करता है, वो मांस खाता है, क्या वो ब्राह्मण होगा? नहीं, राइट. भगवत गीता के हिसाब से तो ब्राह्मण नहीं होगा. तो यहाँ पे ब्राह्मण की क्वालिटीज दिए गए हैं. अभी देखिए ब्राह्मण किसको कहा जाए, तो जन्म के ऊपर बिल्कुल नहीं है, तो ये क्वालिटीज आप में है तो आप भी ब्राह्मण है. कृष्ण कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा. तो ब्राह्मण बनने के लिए आपको किसी
ब्राह्मण के घर पे जन्म लेने का जरूरत नहीं है, ये क्वालिटीज आप डेवलप करिए, आप ब्राह्मण बन गए किस कृष्ण के हिसाब से, राइट, कृष्ण के हिसाब से, वेदों के हिसाब से। जनरली ऐसा होता है ना कि ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ वो ब्राह्मण वो पूजा कर सकता है, नथिंग लाइक दैट। कृष्णा इज सेइंग ये क्वालिटीज आप डेवलप करो, शमोदम तपश्चौच क्षान्तिमार्जवमेव च ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। ब्राह्मण हमेशा शांत होता है, पीसफुल होता है, राइट, सेल्फ कंट्रोल होता है उसके ऊपर। मैंने ऐसे कई ब्राह्मण देखे, मेरे मित्र थे, वो कहते थे हम ब्राह्मण हैं, कोकणस्थ ब्राह्मण, एंड वन अदर वाज देशस्थ ब्राह्मण, and I've seen many times they were eating non-veg, they were smoking. When I was in college they were smoking in the hostel. ब्राह्मण, काय का ब्राह्मण, राइट, सेल्फ कंट्रोल तो है ही नहीं। शौच, शौच का मतलब होता है प्यूरिटी, क्लीनलीनेस। 4-4 दिन नहाते नहीं थे। एक्चुअली हॉस्टल में ऐसा होता है ना कि लोग नहाते नहीं, क्योंकि लेट लेट सोते रहते हैं, और जब उठते तो पता चलता है अरे क्लास शुरू है, तो वैसे ही वहां से भागते और क्लास में जाते, राइट। तो नहाते नहीं थे, काय का ब्राह्मण। शांति में टॉलरेंस, ऑनेस्टी, नॉलेज, राइट, विजडम, रिलीजियसनेस, रिलीजियसनेस चाहिए आपको, धर्म के प्रति आस्था चाहिए। तो ये है ब्राह्मण, ये सारी क्वालिटीज है ब्राह्मण की, ठीक है। लेट्स गो हेड नाउ क्षत्रिय की क्वालिटी। यदि कोई कहता है कि मेरा मेरा जन्म, मैं राजपूत हूँ, राजपूत, कोई कहता है ऐसे, और कोई कहता है कि मैं क्षत्रिय हूँ, मराठा, मराठा। तो मराठा क्षत्रियों के कुछ गुण दिए गए हैं, तो ये अभी यदि आपके पास गुण है तो आप असल में क्षत्रिय है, नहीं है तो नहीं है, राइट। हीरोइज्म, शौर्यम, आप हीरो है एकदम, यू आर रेडी टू प्रोटेक्ट द पीपल हु आर इन ट्रबल। क्षत्रिय का मतलब होता है क्षत्रत्रायति इति क्षत्रिय, जो दूसरों को परेशानियों से बचाए तो उसे क्षत्रिय कहते हैं। हाँ, तो जनरली देखा जाए तो ये सब पुलिस एंड दोज हु आर ऑल प्रोटेक्टर्स, दे आर क्षत्रिय कैटेगरी। पर बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि ये पुलिस लोग ही गरीबों को मारते हैं, तो क्या वो क्षत्रिय है? क्षत्रत्रायते इति क्षत्रिय, क्या वो क्षत्रिय है? नहीं, तो बिल्कुल क्वालिटी नहीं उनमें क्षत्रिय का, तो आउटकास्ट हो गए वो तो, राइट। तो ब्राह्मण का क्वालिटी देखा हमने, क्षत्रिय का भी क्वालिटी है। क्षत्रिय का क्वालिटी मतलब क्या है? शौर्यम, तेज, पावर है, डिटर्मिनेशन है, रिसोर्सफुलनेस है, करेज इन द बैटल। एक पुलिस था, गुंडों को देख के ही भाग गया, वीडियो बहुत वायरल हुआ था उसका। क्या वो पुलिस है? क्या वो क्षत्रिय है? बिल्कुल नहीं। आपने वो वीडियो देखा होगा जिसमें कुछ साधुओं को मारते हैं, क्या वो पुलिस क्षत्रिय है? बिल्कुल नहीं। कुछ उपयोग नहीं है ऐसे लोगों का। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं पहले वो क्वालिटी डेवलप करो, बाद में प्रोफेशन चूज करो, नहीं तो ऐसा सब लफड़ा होगा, राइट। आजकल क्या होता है पता है कि वो देखते वो लोग, अरे हाँ यहाँ पे ना वैकेंसी है, वैकेंसी, पुलिस बनने के लिए वैकेंसी है, उसमें SC इतने, ST इतने, ओपन कैटेगरी के इतने। खुद में क्वालिटी है क्या वो नहीं देखेंगे, क्या मैं सच में पुलिस बन सकता हूँ, क्या सच में मेरे में वो करेजियसनेस है, वो नहीं देखेंगे। जाएंगे, अरे नौकरी है ना, सरकारी नौकरी है। व्हाट इज दिस? यू आर जस्ट स्पॉइलिंग द होल सोसाइटी, you're just spoiling the whole society, right? This is not to be done, right? हमारे सोसाइटी में आज इतने सारे प्रॉब्लम्स क्यों है? क्योंकि लोग अपने नेचर के अनुसार अपना प्रोफेशन नहीं ले रहे हैं, राइट। जस्ट देखते हैं यहाँ पे नौकरी अवेलेबल है, चलो ज्वाइन करो। अरे भाई तेरा स्वभाव तो देख, तेरा स्वभाव तो देख, तुझे क्या अच्छा लगता है वो तो देख, और उसके हिसाब से तू चूज करना। नहीं, वहां पे सैलरी अच्छी है इसलिए हम जा रहे हैं, देन उसका कुछ फायदा नहीं होगा। लेट्स गो अहेड। लीडरशिप आर द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ द वर्क फॉर द क्षत्रिय। जेनरोसिटीज, देने की भावना क्षत्रियों में होती है। तो ये सारे क्षत्रियों के गुण हैं। कृषि, गोरक्ष, वाणिज्यम, वैश्य, कर्म स्वभावजम। तो वैश्य मतलब क्या? बिजनेस क्लास पीपल, राइट। तो उसकी उनकी क्या क्वालिटीज है? कृषि, गोरक्ष, वाणिज्यम, वो फार्मिंग करते हैं और गायों की सेवा करते हैं, गोरक्षा यहाँ पे दिया गया है, और वाणिज्य, बिजनेस करते हैं, पैसे का काम करते हैं, राइट। तो वो है जैसे बैंक्स वगैरह दे कम अंडर दी वैश्य कर्म,
right? They come under the Vaishya karma. परिचर्यात्मकम कर्मम शूद्रस्यापि स्वभावजम, और दूसरों की सेवा करना, मतलब दूसरों की जो भी सेवा करता है उन्हें कहते हैं शूद्र। शूद्र का मतलब ऐसा नहीं होता प्लीज, बहुत लोग कहते हैं शूद्र का मतलब यानी ना बहुत निचले वाली जमात में, जाति में जन्म लेना, कि नहीं तो अलग अलग जो छोटी कास्ट है जैसे ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, उसमें जन्म लेना मतलब शूद्र। नहीं बाबा, ऐसे नहीं है। हाँ, तो कृष्ण ने अकॉर्डिंग टू योर स्वभाव, अकॉर्डिंग टू योर नेचर जाति की विभाग नहीं की है, जाति का डिस्क्रिमिनेशन किया है। ब्राह्मण के हमने क्वालिटीज देखे, वो पीसफुल हो, उसे ज्ञान हो, वो उसे अध्यात्म में रुचि हो, वो ब्राह्मण है। क्षत्रिय के बारे में क्या बताया? जो दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए भागे, उसे क्षत्रिय कहा गया है, राइट। और वैश्य कौन है? जो पैसे की लेन देन करता है, जो बिजनेस करता है, जो फार्मिंग करता है, उसे कहा गया है कि आप वैश्य है, राइट। तो यहाँ पे आपकी कास्ट का उसका कुछ सवाल नहीं है। तो कास्ट वगैरह सब अंग्रेजों ने वो सब बनाई क्योंकि हमारे खुद में कुछ झगड़ा हो, इसलिए। तो उसमें बर्थ एंड आपकी कास्ट का कुछ नहीं है। परिचर्यात्मकम कर्मम शूद्रस्यापि स्वभावजम, और जो दूसरों की सेवा करता है उसे शूद्र कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि हमको शूद्र कहा गया क्योंकि हम निचली वाली जमाती में हैं। नहीं, वैसे नहीं है। आप यदि ब्राह्मण के कर्म करेंगे, आप पीसफुल में डेवलप करेंगे, आप भगवान की भक्ति करेंगे, तो आप भी ब्राह्मण बन सकते हैं। तो यहाँ पे कास्ट का कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। कृष्ण यहाँ पे कह रहे श्रेयान स्वधर्म बगुणो, इसलिए कृष्ण कह रहे कि आप खुद का काम करो, आपको जिसमें इंटरेस्ट है, आपका जिसका जो नेचर है आपका वो करो। कोई कोई बच्चों को चित्रकार बनना होता है, वो उनका नेचुरल इंटरेस्ट होता है, चित्रकार बनना होता है, पर पापा कहते हैं चित्रकार को स्कोप नहीं है, आप इंजीनियर बनो, इंजीनियर को बहुत सैलरी मिलता है। देन ही पुशेस हिज डिजायर डाउन एंड डाउन एंड डाउन, राइट, और इंजीनियर बनता है। तो क्या वो सुखी रह पाएगा? नहीं, क्योंकि वो उसका स्वभाव नहीं है। तो जो आपका स्वभाव है वो आप करेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। जैसे आई टेल अबाउट माई सेल्फ, when I was doing engineering and I had many opportunities to join many companies, right? पर मेरा स्वभाव था, मुझे ना पढ़ाना था, मुझे बहुत अच्छा लगता था पढ़ाना, बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने ना एक कॉलेज ज्वाइन कर लिया, अच्छा खासा पैसा देते थे, हाँ, परंतु उधर भी कैसा था कि आपके मन के हिसाब से नहीं पढ़ा सकते, वही बोरिंग रुखी सुखी चीजें पढ़ानी पड़ती थी। पर मेरा तो स्वभाव था अभी पढ़ाने का, तो क्या करूं? Then I started taking Gita classes. And what about my earnings? How do I earn? I set up for that. I have my different business. पर खुद की लाइकिंग के लिए मैंने एक सेक्ट छोड़ा है, क्योंकि जब तक आप आपके स्वभाव के अनुसार काम नहीं करेंगे ना, खुश नहीं रह पाएंगे। Now I tell you one thing. Now if somebody tells me ना, आप मुझे दिन भर सिखाओ गीता के बारे में, गीता के बारे में, I will teach them for free, right? Because that's my स्वभाव. I like that. जैसे एक चित्रकार को, वो ऐसा ही बैठा है चित्र निकाल रहा है, उसको बहुत मजा आता है उसमें, आता है कि नहीं? तो वो हमेशा एंजॉय करेगा चित्र निकालना। तो उसी प्रकार से हर एक का अपना स्वभाव होता है। तो वो स्वभाव क्या है? कृष्ण कह रहे हैं कि उस स्वभाव को जानो और उसके अनुसार कर्म करो, तो ही आप इस जीवन में खुश रह पाएंगे और भगवत भक्ति डेवलप कर पाएंगे। क्योंकि स्वभाव जो है आपको कृष्ण ने दिया है, तो उस स्वभाव के हिसाब से काम करो। यदि आपको फाइट करने का स्वभाव है, जाओ आर्मी ज्वाइन करो। यदि आपका फाइट करने का स्वभाव है और आप आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आपका हमेशा ना हमेशा किससे फाइट होगा? मारा मारी करते रहेंगे आप, राइट। आपका स्वभाव है कि पढ़ना है, आपको बहुत सारे शास्त्र पढ़ने हैं, तो ब्राह्मण का काम करो आप, राइट, ब्राह्मण का काम करो। और ऐसे लोगों की भी जरूरत पड़ती है ना, ब्राह्मण की भी बहुत सारी जरूरत पड़ती है आजकल हर जगह पे, तो वो सीखो आप, राइट। आपको यज्ञ याग वगैरह अच्छा लगता है, ब्राह्मण का काम करो। आपको फाइटिंग अच्छा लगता है, तो वो काम करो, जो भी आपको अच्छा लगता है वो करो, राइट। आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता तो किसकी सेवा करो, राइट। परिचर्यात्मकम कर्मम, तो जो भी कर रहे हैं उनकी सेवा करो।
राइट। तो कृष्ण कह रहे हैं श्रेयान स्वधर्म विगुणो पर धर्म स्वनिष्ठितः, तो अच्छा नहीं है दूसरों का स्वभाव के अनुसार काम करना, खुद का जो स्वभाव है ना वही काम आप करो। ब्रह्मीभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परम। तो कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि जो व्यक्ति है ब्रह्मीभूत प्रसन्नात्मा है, प्रसन्न है, न शोचती न कांक्षती, वो कभी शोच नहीं करता अरे मुझे मिला नहीं यार, न कांक्षती अरे मुझे वो चाहिए यार। समः सर्वेषु भूतेषु, he is equal to everyone and that person gets the bhakti of Krishna. Let's go ahead. Krishna is telling here ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। यहाँ पे भी भगवान ने सुपर सोल के बारे में बताया है। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। देश का मतलब होता है नेशन। यहाँ पे कौन सा नेशन बताया है? हृद्देशे, दिस नेशन। इन दिस हार्ट देयर स्टेज ईश्वरः भ्रामयं सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। और जिस प्रकार से एक यंत्र चलते रहता है उसी प्रकार से वो अलग अलग शरीर को चालना देते हैं और हर एक शरीर में वो निवास करते हैं, हर एक व्यक्ति के शरीर में निवास करते हैं। इसका मतलब जो भी शरीर में आप जाएंगे ना, whichever body you accept, the soul will be with you, the super soul will be with you। भगवान आपके साथ रहेंगे। भले ही आप एक छोटा सा जीव बन जाए तो भगवान आपके साथ हमेशा आपके हृदय में प्रकट रहेंगे। और कृष्ण ने बाद में बताया कि मैंने आपको ये सब ज्ञान दिया है, और लास्ट में बताया यथा इच्छसि तथा कुरु, आपको जो चाहिए वो करिए। जब जस्ट इमेजिन कीजिए आपको टीचर इतना अच्छा से ज्ञान दे रही है, आप कोई क्लासेस में जाते हैं और इतना अच्छा से आपको सिखा रहा है, हाँ ये करो वो करो वो करो वो करो, एग्जाम को ऐसे देना है, और बाद में ये भी कहेगी ये करना मेरा नाम रोशन होगा। तो कृष्ण ऐसे नहीं कह रहे हैं। यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं मैं सब बता दिया आपको, अभी आपको जो करना है वो करो, मुझे आपसे कुछ लेना देना नहीं है, आपको जो करना है वो करो। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। ये सब आपको बेनिफिट करेगा। कृष्ण ने फिर से एक बार ये श्लोक को दोहराया है, हमने 9 चैप्टर में इसका स्मरण किया था। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजानी प्रियोऽसि मे। मन में मेरा स्मरण करो, मद भक्तो मेरा भक्त बनो, मद्याजी मेरी पूजा करो, माम नमस्कुरु मुझे नमस्कार करो, और इससे आप मेरे पास आ जाओगे। सत्यम ते, आई एम टेलिंग ट्रूली यू विल कम टू मी। सो जस्ट आपको ये फॉलो करना है, हमेशा याद रखिए वर्स को और उसको फॉलो कीजिए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अभी फाइनली बोल रहे हैं कि ना अभी यहाँ पे एक इन्होंने धर्म का ट्रांसलेशन रिलीजन किया है, पर इन द ब्रॉड सेंस धर्म का मतलब होता है आपके कर्म, राइट। तो अर्जुन का धर्म क्या था? फाइटिंग, राइट। अर्जुन का धर्म क्या था? फाइटिंग। सो कृष्णा इज टेलिंग जस्ट अबैंडन एवरीथिंग। अभी आपको गीता समझी नहीं समझी मुझे पता नहीं, पर आप अभी क्या करो ना अर्जुन, सब कुछ छोड़ दो और मेरी शरण लो, और मैं जो बोलता हूँ वो करो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, राइट। बिकॉज नाउ दिस इज द फाइनल चैप्टर। कृष्णा इज टेलिंग देखो मुझे पता नहीं आपको कितना समझा है, ही इज आस्किंग एक्चुअली कि अर्जुन को कि मुझे पता नहीं आपको कितना समझा है कि नहीं है, और मैं भी आपको पूछ रहा हूँ कि आपको समझा है कि नहीं है। मुझे पता नहीं गीता का कितना समझा, आपके दिमाग में कितना गया, गॉड नोज, परंतु नहीं भी समझा है, मामेकम शरणं व्रज, कृष्ण की शरण लो। दैट्स इट, दैट्स द फाइनल वर्डिक्ट। आपको कितना समझा है इस क्लास में मुझे पता नहीं, परंतु कृष्ण की आप शरण लो, कृष्ण का हमेशा स्मरण करो, राइट। और कृष्ण कह रहे हैं कि one who explains this supreme secret to devotees, pure devotional service is guaranteed and end he will come back to me। और ये उन लोगों के लिए है
जो गीता के बारे में प्रचार करना चाहते हैं, जो गीता को दूसरों को सुनाना चाहते हैं, those who are telling Gita to others, what Krishna is telling them, they will come to me. So now you got why I'm telling you this Gita, because I have some interest, because I want that I should go to Krishna at the end of this birth. I mean, at the end of this life. Because Krishna is telling, those who will tell this knowledge to others, he will come to me. तो आप भी दूसरों को बताओ और अपना टिकट फाड़ो, right? Now Krishna is telling very important verse. He is telling कि जो भी भगवत गीता के बारे में दूसरों को बताता है, there is no one dear to me than he. कोई उससे प्रिय मुझे नहीं है. तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये श्लोक पढ़ के, राइट? कि जो गीता के बारे में दूसरों को बताता है, one who is telling this knowledge to others is very dear to me. So आप भी दूसरों को बताइए इस गीता के ज्ञान के बारे में और भगवान की कृपा को प्राप्त कीजिए. Yeah. Now Krishna is telling that those who are reading Gita, they are actually worshipping Krishna with their intelligence. Okay. And those who study this, see, and one who listens with the faith and without envy becomes free from the sinful reactions. सारे पाप नष्ट हो जाते हैं जो भी गीता को सुनता है, and attains the auspicious planets where pious dwell. तो उसको उच्च लोक में गति मिलती है. Now Arjuna is telling, कृष्ण ने पूछा ना, मुझे पता नहीं आपको कितना समझाया, नहीं भी समझाया तो just surrender unto me. Arjuna is telling, नष्टमोहा स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादान्मया अच्युता तितोस्मि गतवन्देह करिष्ये वचनं तव. जो आप बोल रहे मैं करूंगा, क्योंकि मेरे जो सब डाउट है, my all doubts are dispelled and now I will do whatever say O Shri Krishna. So अर्जुन को गीता समझ में आई आखिर में. देखिए ना कितने प्रश्न पूछे. वैसे देखा जाए तो सेकंड चैप्टर में ही आपने देखा कि बहुत सारा ज्ञान कृष्ण ने दे दिया था. सिर्फ उसका जो विस्तृत वर्णन है हम अलग अलग चैप्टर में सुन रहे थे. वी आर जस्ट डिस्कसिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ द थिंग्स व्हिच वर डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 2, राइट? And now finally at the end of the 18th chapter, Arjuna realized, अरे मेरे को समझा है सब कृष्णा. Now I have understood everything and whatever you are saying, I will do that thing. Now here Sanjay is saying, whenever I am hearing this knowledge and whenever I remember Krishna, my body's hair are standing at the romaharshanas. मुझे बहुत आनंद आ रहा है जब मैं कृष्ण को देखता हूँ, क्योंकि संजय केवल देख रहे थे, जो भी देख रहे थे बता रहे थे. व्यास प्रसादाच्युत वाणी महं परम योगम योगेश्वरात् कृष्ण साक्षात् कथयथ स्वयं. और मैंने क्यों देखा, why could I see this whole Mahabharata? Because व्यास प्रसाद अच्युता. तो व्यास जी ने मुझे प्रसाद दिया है. Because of the blessing of the Vyas Dev, I could see this. राजं संस्मृत्य संवाद इममद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः. So whenever I remember Krishna and Arjuna, they are speaking, my God, I cannot stop my happiness, I cannot stop my pleasure. So this is actually pleasure, right? You will feel so happy after reading Gita again and again, and you will see whenever you read Gita, you will get a newer and newer understanding of this Gita, right? Newer and newer meaning will be revealed to you. Tacham sanskritya rupam adbhutam hare vismayo me mahan rajam rishyami cha punah punah. बार बार मुझे आनंद आ रहा है, बार बार मुझे आनंद आ रहा है. आई होप आपको भी आनंद आया होगा इस पूरी गीता को सुन के. एंड आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल दैट now I think 60-65 boys are continuing till day 8. Hats off. Now this is final verse. And it is said that where there is a Krishna, where there is Arjuna, the victory is guaranteed. So many times in life it will happen that you will feel कि यहाँ पे ना पैसा ज्यादा है, यहाँ पे ना अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, पर देखिए वहां पे कृष्ण भी है क्या, देखिए वहां पे कि आप भक्ति भी कर सकते हैं. तो फर्स्ट चूज कृष्णा, then choose everything else.
So wherever there is a Krishna, there is a lot of money, there is a lot of dharma. Yatra Yogeshwara Krishna Yatra Partho Dhanudhara Tatra Sri Vijayo Bhuti Vani Tirmakir Mama. Sanjay speaking, this is last verse. He says, where there is Krishna, where there is Arjuna. Arjuna means where there is his devotees. So there will be opulence, ऐसा धन रहेगा, victory, जय उसका ही होगा, extraordinary power, and morality. That is my opinion. So Sanjay is telling, just choose Krishna's side, and indirectly he is hinting Dhritarashtra दुर्योधन के साइड में कृष्ण नहीं है, क्योंकि कृष्ण जिस साइड में है उनकी विजय निश्चित है। तो धृतराष्ट्र, आप अभी शांति से आराम करिए, क्योंकि आप अभी कुछ भी कर लेंगे ना, आपके बेटों का मृत्यु कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, लेट्स स्टॉप हियर एंड आई एम सो हैप्पी दैट we have completed Gita. Amazing, kudos to you. Let's clap for everyone. 18 chapter we have completed, isn't it? Just I'm unmuting you. Okay, so किसी को कुछ प्रश्न है तो लेंगे, और बाद में please don't leave. I want some 1 minutes of interview. मतलब what did you, आपको क्या अच्छा लगा वगैरह वगैरह आपको बताना है, बस 30 seconds में जो भी आपको अच्छा लगा वो, ठीक है? मतलब केवल ऐसे बता दीजिए क्लास बहुत बोरिंग था और प्लीज मत आइए, और नहीं तो क्लास बहुत अच्छा था एंड वी रियली एंजॉयड एंड आई वांट दैट बोथ you also take advantage, like whatever you say. Let's go to Aditya. Aditya has some question. Bolo Aditya. Sir, mask nikalo Aditya. I can't see myself in the screen. Okay, I can see you, but tell me question. Sir, how can I'm so happy that you have taught us Bhagavad Gita. Thank you so much. Thank you. You have heard this knowledge and you are so young here, but still you are sitting and at one place I can see that same background, same every day, and you are just sitting at 8 a.m. Amazing, Aditya, you're amazing. Thank you. Any question? Any questions? No. Okay. Ishani, you have a question? No. Ishan Sahu, you have a question? No. Okay, nobody has a question. So let's, okay, Ishani have a question. Bolo Ishani. Sir, even I really enjoyed the class and it was really good learning about Bhagavad Gita. Amazing. Thanks a lot. Now I'll give a chance to those who want a chance, so they can just express whatever they want to speak.